آج ہم فیمنزم پہ ڈسکس کریں گے۔ فیمنزم تو ویسے تو یہ فیمیل کی حقوق کی بات ہے، تو گرلز کے لیے کافی بہتر ہے۔ اچھا، فیمنزم کا جو اوور آل میننگ بنتا ہے وہ جو ایکول رائٹس ملنے چاہیے خواتین کو، اور وائلنس کے لحاظ سے بھی تو وائلنس ہو تو وہ بھی سب کو برابر ہونا چاہیے۔ اصل میں ایکول رائٹ سے مراد یہ نہیں کہ عورتوں کو یہ چیز مل جائے، نہیں، یہاں فیمنزم کا جو مطلب ہے وہ ایکوالٹی ہونی چاہیے۔ وائلنس ہے تو جتنا مردوں کو عورتوں کو ملتا ہے اتنا ہی اس لحاظ سے، اور جو ہے نا حقوق جو مردوں کو جتنے دیے جاتے ہیں اتنے ہی عورتوں کو ملیں۔ ریونج ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ایک جیسا ہی ہے۔ تعلیم ہے تو مردوں کو بھی اتنی ہی ملنی چاہیے، عورتوں کو بھی۔ مذہبی کوئی چیز ہے تو اسی طرح اس برابر کے حقوق ملنے چاہیے۔ سپورٹس کی بات ہے تو مردوں کو جتنا کچھ ملتا ہے اتنا ہی دیا جائے۔ کہیں جانا ہے تو جتنی حقوق مردوں کو ہے اتنے ہی عورتوں کو ہونے چاہیے۔ کبھی سیر و تفریح ہے تو جتنا مرد جیسے چاہتے ہیں جانا آنا، یہ وہ اسی طریقے سے عورتوں کو ملنا چاہیے۔ تو فیمنزم ایکچولی ایکول رائٹس کی بات کرتا ہے۔ تو ایکوالٹی خواتین کو دی جائے، تو یہ جو فیمنزم ہے، لیکن خیر ہم اس کو کریٹیکلی تھوڑا سا دیکھیں تو کہیں بات اور ہی نکل جائے گی۔ برکہ عورتوں کو برابری کے حقوق دینا ہر لحاظ سے، چاہے سپورٹس ہے، چاہے اخلاقیات ہے، چاہے مذہب ہے، چاہے ایجوکیشن ہے، تو in all these things there should be equal rights to men and women، اور برابری کی بنیاد پر ان کو حقوق دیے جانے چاہیے۔ 1837 میں ہی ایکچولی یہ ٹرم جو ہیں ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہاں جو اگر کانسیپٹس کی بات کریں تو فیمیل کے جو معنی بایولوجیکل کنسٹرکٹنگ میں دیکھیں تو اس کے ایکچوئل معنی ہیں کیئرنگ کرنا، خیال رکھنا، ایسے اس چیز میں آتے ہیں۔ فیمنزم کے جو معنی ہیں عورتوں کو برابری کے حقوق دیے جانا، اور یہ ٹرم خیر ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم فیمنزم کی بات کریں اور دیکھیں یونانیوں کے دور کے اندر، ارسطوٹل کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو اس وقت جو فیمنزم کی ٹرم اس وقت بھی تھی، لیکن وہ لوگ عورتوں کو جو ہیں امپرفیکٹ کریچر سمجھتے تھے۔ اس کے حساب سے جو عورت ہے وہ امپرفیکٹ ہے کسی بھی معاملے کے اندر۔ تو وہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں، کیئرنگ، لونگ، یہ سارے یہ مردوں کے حقوق ہیں اور یہی کو کر سکتے ہیں، عورت یہ نہیں کر سکتی، یہ چیزیں نہیں کر سکتی۔ تو ان لوگوں نے، یونانیوں نے خاص طور پہ امپرفیکٹ کہا تھا اس کو، عورت کو۔ تو اگر ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی بات کریں تو ان کا جو کانسیپٹ تھا عورت کے بارے میں، فیمنزم کی بات اگر کریں، یہودی اور عیسائیوں نے جو اس کا کنسیپٹ، وہ کہتے تھے کہ جو عورت ہے یہ تو چوائس ہی نہیں تھی، یہ فرسٹ چوائس نہیں تھی۔ خیر انہوں نے بھی جو ہے نا عورت کو جو ہے اچھا نہیں سمجھا، اسی طریقے جیسے ارسطوٹل نے اور ان لوگوں نے فیمنزم کے لحاظ سے جو ہے نا وہ برابری کے حقوق نہیں دیے، اور اس کو عورت کو
परफेक्ट समझ गया। इसी तरीके से यहूदी और ईसाइयों ने कहा कि नहीं, खुदा की ज़ात इक्वल राइट नहीं नज़र आते हमें, इक्वल राइट नज़र नहीं आते। यहूदी ईसाइयों ने भी ये एक्चुअल बताया था, और इन्होंने भी ये फलसफा दिया था कि ये जो औरत है ये तो चॉइस ही नहीं, मतलब ये सेकंड चॉइस थी। बल्कि इसकी अगर हम बात करें तो सेकंड चॉइस, और ये जो, बल्कि ये तो इम्परफेक्ट थी, और इसने ही वो जो कत्लो गारत और लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें यही करवाने वाली थी। तो शुरू में ही देखें तो पहली चॉइस वो हज़रत आदम की थी। तो वो वैसे भी कितने केयरिंग और कितने मुहज़्ज़ब और ह्यूमनिज़्म के करीब और ये सारी चीज़ें। तो जो औरत है वो बिल्कुल सेकंड चॉइस, और इसको ये कैसे हो सकता है, ये इक्वल राइट्स इनको मिलने चाहिए। तो फेमिनिज्म में यहूदियों ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन की बुक के अंदर अगर हम देखें तो वो उन्होंने खैर फेमिनिज्म के ऊपर ये बातें कही हैं कि लिबर्टी जो है औरत के लिए लाजमी है। तो इफ़ यू वांट टू गेट अ प्रोस्पेरिटी इन द सोसाइटी, इन द neighboring, in this environment, in this world, you should give the liberty to the woman, then there will be a prosperity. तो खुशहाली अगर चाहते हो, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के अंदर, इस बुक के अंदर उन्होंने लिखा है कि अगर तुम खुशहाली चाहते हो तो औरत को फिर लिबर्टी दो। तो औरत के लिए की लिबर्टी जो है वो लाजमी है खुशहाली के लिए। अच्छा, इन एजुकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन की बुक के अंदर जो इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, और उसके अंदर जो है फेमिनिज्म में जो बात की, वो कहते हैं कि जो जो अगर मर्दों को औरतों को मर्दों के बराबर अगर हकूक देंगे तो फिर ही तरक्की होगी। उन्होंने तो खैर यही यही कहा है कि तरक्की का राज इसी चीज़ के अंदर है कि औरतों को मर्दों के बराबर हकूक मिलें। तो उनको आज़ादी हो, उनको ज़हनी आज़ादी हो, उनको तालीमी आज़ादी हो, और फिर वो खूब काम करेंगी, मर्दों की शाना बशाना खड़ी होकर अपनी चीज़ों को डेवलप करेंगी और बराबरी की सतह पर। तो फिर तरक्की अगर करनी चाहते हो तो फिर यहाँ औरत को जो है ना लिबर्टी दें, आज़ादी दें, हम बराबरी के हकूक़ दें, तो फिर तरक्की हो सकती है, वरना नहीं। तो आसपास भी उनको मिसालें भी दी हैं उन्होंने कि वहाँ जहाँ औरत बराबरी के हकूक़ लिए खड़ी है, देयर इज़ अ प्रॉस्पेरिटी। तो वर्जीना वोल्फ जो फर्स्ट खातून थी और जिन्होंने एक्चुअल लिखा ही फेमिनिज्म के ऊपर है, इसने औरतों को अपनी पहचान दी है। ये पहली फीमेल राइटर थी जिन्होंने औरत के लिए लिखा। ये कहती थी कि जो मर्द हैं वो मेल डोमिनेंस के ऊपर ही लिखते हैं, और उनके सेंटेंसेस भी ऐसे ही होते हैं कि जिससे मेल डोमिनेंस हो, और लिटरेचर के अंदर, और वो जो बिल्कुल औरत को थोड़ा सा दबा के रखेंगे, उनकी राइटिंग के अंदर भी जेलसी और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वर्जीनिया वोल्फ आल्सो गिव the different structure of the sentence. She want to say that women should write lengthy sentences, कि औरत को चाहिए कि वो लेंथी सेंटेंसेस लिखे। तो मेल के जो होते हैं वो छोटे होते हैं, और इसी तरीके से हमें वर्जीना वॉल्फ के अंदर लेंथी सेंटेंसेस भी नज़र आते हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखती थी ये। और
अच्छा, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, अ, एक किताब लिखी थी सेकंड सेक्स के ऊपर किताब लिखी थी जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर थी। उस किताब के अंदर जो है अ, फर्क बताया है गया है कि लड़का है या लड़की है। तो इस किताब के अंदर भी ये फेमिनिज्म की बात हुई है। उसके अंदर जो है वो कहते हैं कि जो जब लड़की पैदा होती है, पैदाइश पर ही जो इनका जो तरीकाकार डिफरेंट होता है, घर वालों का, माहौल का, आसपास की दुनिया का। लड़की है तो फिर वो लड़कियों वाले कपड़े शुरू हो जाते हैं, और जो है ना उसको बिल्कुल उसी तरीके से अलग रखा जाता है, और सारी चीज़ें सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं। और उसका माहौल, उसको तरबियत, उसकी जो एजुकेशन और उसका जो इखलाकियात और उसका जो रहन सहन हो, ये सारा का सारा अलग होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल डिफरेंट है। और लड़के का इसी तरीके से अलहदा होता है। तो उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर एक्चुअल बात की है। अच्छा, ये टर्म्स दो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, फेमिनिज्म और वुमेनिज्म। टुडे एक्चुअली वी आर रीडिंग ऑन फेमिनिज्म। ये दो टर्म्स भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और फेमिनिज्म है ये इक्वल राइट्स की बात की जाती है, इखलाकी लिहाज से, मॉरली, एजुकेशन, और ये बराबरी के हकूक़ की बात करता है। और दूसरी टर्म्स हैं वुमेनिज्म। ये भी आपने सुनी होगी, इन दोनों में क्या फ़र्क है। और फेमिनिज्म जो है ये बराबरी के हकूक़ देने हैं। इसमें इस टर्म के ऊपर उन्होंने बताया है कि बराबरी के हकूक़ किनको या बात किसकी करनी है। फेमिनिज्म में असल में सब औरतें आती हैं, चाहे कोई काली है, गोरी है, छोटे कद की है, बड़े कद की है, खूबसूरत है, जो बदसूरत है, प्यारी है या कोई नहीं है। तो ये सब औरतें बराबरी के हकूक़ रखती हैं या इनको मिलने चाहिए। और फेमिनिज्म के ऊपर जो टर्म एक यूज़ दूसरी भी हुई है वो वुमेनिज्म है। इसमें जो है सिर्फ ब्लैक औरतें के ऊपर बात की गई है। वुमेनिज्म की अगर बात करें तो फिर ब्लैक औरतों को उनके मसाइल क्या हैं और उनके मसाइल कैसे ख़त्म होने चाहिए और उनको कौन से हकूक़ मिलने चाहिए, तो इन चीज़ों के ऊपर बात की गई है। ये दो टर्म्स यूज़ हुई हैं आम तौर पे। तो औरतें चाहे जैसे फेमिनिज्म है तो उसमें औरतें जैसी भी हों, जिस तरह की भी हों, काली को भी उतने हकूक़ हैं, गोरे को भी उतने हकूक़ हैं। एक्चुअली यहाँ इक्वल राइट्स, औरत के ओवरऑल इक्वल राइट्स हैं मर्दों के बराबर। और वुमेनिज्म की अगर अब हम बात करें तो वुमेनिज्म की टर्म्स भी इसी बुक के अंदर, फेमिनिज्म की ओवरऑल बुक के अंदर ये टर्म यूज़ की गई है। उसके अंदर जो ख़ास तौर पे ब्लैक औरत के घर के मसाइल क्या हैं उनके ऊपर बात की गई है। और उसके थॉमस हेलन सोसो ने भी कुछ लिखा है। उसने लिखा था कि औरत की जो नेचर है वो पैसिव है, और जो मर्द की है वो एक्टिव के अंदर आती है। तो खैर उसने ये बात की थी। लाफ ऑफ मर्डूसा की बुक के अंदर उन्होंने लिखा है, ये टर्म्स भी उन लोगों ने लिखा है इस फेमिनिज्म की टर्म्स के ऊपर के, उसमें सिर्फ जो बातें की गई हैं वो यही हैं कि हाउ वुमेन राइट्स फॉर द अदर्स। अच्छा, औरत जो है
عورت کے لیے کیسا لکھتی ہے؟ اگر بلیک وومن ہے تو وہ بلیک عورت جو ہے بلیک عورتوں کے لیے کیسا لکھتی ہے؟ بلیک عورت رائٹر ہے تو وہ وائٹ عورتوں کے لیے کیسا لکھتی ہے؟ بلیک عورت رائٹر ہے تو بدصورت عورتوں کے لیے کیسا لکھتی ہے؟ اور بلیک عورت ہے تو پھر آ، خوبصورت عورتوں کے لیے کیسا لکھتی ہے؟ تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، کچھ کتابوں کا ذکر کیا ہے، تو ان کے اندر جو ہے مختلف طریقے سے بات کی گئی ہے عورت کے اوپر، اور یہ کچھ ٹرمز ہیں، اور مزید ہم جو مزید کچھ ٹرمز اس میں یوز ہوئی ہوں گی فیمنزم کے اوپر، ہم انشاءاللہ کل ان کے اوپر ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے خیر اتنا ہی کافی ہے. اینی کوشچن ریلیٹڈ ٹو ٹوڈے ٹاپک یو کین آسک، ادروائز وی ول ڈسکس آن اٹ such a topic tomorrow properly, because suddenly you told me to say something, to take a lecture today, so I get some information and I deliver to you no in this time to you. So related to such a topic, if you have some question, ask, and I will tell. Otherwise, we will discuss on this topic tomorrow with more information. جی. چلو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی.